A very good morning to all of you dear students. How are you students? I hope all of you are fine. So students, first of all, I have a request to all of you. Do your work properly and after doing your work, send your work for checking. ओके बेटे, आप अपना वर्क प्रॉपरली करिए और करने के बाद अपना वर्क पर्टिकुलरली एंड रेगुलरली उसे सेंड करिए चेकिंग के लिए. एंड नाउ वी विल रिवाइज अवर चैप्टर फर्स्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर रिवीजन वर्क. आज से हम अपना रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे. एंड टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर मोशन, चैप्टर 8, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. In this class we have 5 chapters in physics. इस क्लास में हमारे पास फिजिक्स में 5 chapters हैं. First chapter of physics is motion. Second is force and laws of motion. Third is gravitation. Fourth, work and energy. And last chapter is sound. And today we are going to revise chapter motion, chapter 8. That is the first chapter of physics. And physics is a branch of साइंस. फिजिक्स साइंस की ब्रांच है. एंड जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, एज वी नो दैट फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो गैलीलाई, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, they are known as father of physics. We have already studied about them. And as we know that who is the father of modern physics? Father of modern physics is Galileo Galilei. Now let's start चैप्टर मोशन. जब भी हम फिजिक्स में कोई टॉपिक रीड करते हैं, किसी टॉपिक की स्टडी करते हैं, वहाँ किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम रीड करते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर रिलेटेड टू चैप्टर मोशन. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन. नाउ लेट्स सी कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रीड करने वाले हैं. So physical quantities are physical quantity, motion, distance, displacement, speed, velocity and acceleration. So one by one we are going to read about these physical quantities. Now let's start. First of all, what is physical quantities? Physical quantity क्या होती है? Now let's see physical quantity. The quantities that can be measured are called physical quantities. वो quantities जिन्हें measure किया जा सकता है that are called physical quantity. हम physics के हर chapter में कोई ना कोई term read करते हैं and these terms are related to our physical quantity. Now let's see how many types of physical quantity. Physical quantities are of two types. Scalar and vector. As we know that physical quantities are of two type. All जितने भी चैप्टर हमने फिजिक्स में रीड किए, हर चैप्टर में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में रीड किया है. फिजिकल क्वांटिटी या तो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है या वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है. सो व्हाट इज अ स्केलर? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड. Dear students, as we know that what is the scalar quantity? Scalar quantity क्या होती है? The physical quantity having only magnitude. Magnitude. Now what do you mean by magnitude? Magnitude means suppose that किसी object का mass है 12 kg. So 12 is magnitude. किसी object पे force apply हुआ है 4 Newton. 4 is magnitude. Number साइज उसका क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी. अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. a physical quantity having magnitude
as well as direction is known as vector physical quantities. वो physical quantities जिसमें magnitude के साथ साथ direction भी matter करता है, उन physical quantities को हम vector physical quantities कहते हैं. Now let's see vector and physical quantities को explain करने के लिए and for the study of motion. We are going to read about two terms, distance and displacement. Now let's see what is distance and displacement. Distance is the actual length of a path covered by the object is called distance. किसी object ने अपने way में कितनी length cover की है, that is called distance. And displacement, it is referred to be the shortest and straight line path between the initial and final position, that is called displacement. Now let's see what is the difference between distance and displacement. Now let's see difference between distance and displacement. What is distance? It is the actual length. Actual length of the path covered by a moving body. That is distance. What is displacement? It is referred to be the shortest or straight line path between the initial and final position. That is called displacement. Now let's see what is distance. Suppose that an object is moving A to B, that is A point and that is B, and object is moving A to B 100 meter. Is moving A to B 100 meter and again B to A 100 meter. First A to B, then B to A. So total distance is AB plus BC. कितनी distance उसने cover की? What is distance? The distance is the actual length of the path covered by the moving body. तो object move कर रही है A to B, then B to A. So total कितनी उसने length, कितनी distance cover की है? तो distance is 100 plus 100, 200 meter. That is the distance. अब हम बात करें displacement की. So displacement के केस में object is moving A to B 100 and then B to A 100. So what is the difference between the shortest and straight line path between the initial and final position? Initial position is A. Initial position means जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करती है, एंड फाइनल पोजीशन जो हम जिस पोजीशन पर आकर वो रेस्टिंग में आ जाती है. सो इनिशियल पोजीशन है A. ऑब्जेक्ट ने A पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया एंड आफ्टर गोइंग टू B पॉइंट ऑब्जेक्ट फिर से मूव कर रही है कहा? बैक टू A पॉइंट. So initial position of object is A and the final position of object will be also A. Object की initial position भी A है, object की final position भी A है, so displacement will be 0.
डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. Now let's see one more example. Suppose that object moving A to B 2 meter, then B to C 3 meter. Object is moving A to B. Object is moving west to east. A to B means west to east. Suppose that object is moving west to east, and after that east to south, east to south and west to east. Object is moving A to B 2 meter and B to C 3 meter, and the direction is A to B is west to east and B to C is east to south. So total distance, what is the total distance covered by the object? ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है, तो टोटल डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की AB प्लस BC. AB प्लस BC मीन्स 2 plus 3. 2 plus 3. Now we are टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अब हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी. एज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. सो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? बेटा लिसन केयरफुली. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? सो व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मीन्स प्रारंभिक अवस्था. इनिशियल पोजीशन इज ए. ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है? ए. एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सी. ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है सी और उसकी इनिशियल पोजीशन है ए. द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, the shortest straight line path between the initial and final position is called displacement. So distance क्या होगी ऑब्जेक्ट की? AB plus BC. but displacement क्या होगी ऑब्जेक्ट की? AC. what is the value of displacement? Displacement is AC. we can measure them by using scale. हम scale से इस displacement को measure कर सकते हैं, बट ये डिफर होगी डिस्टेंस से. सो यहाँ हमें एक और डिफरेंस क्लियर हुआ कि डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता. डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है. ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रही है, हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट A to B गई, A to B 2 किलोमीटर, देन B to C गई ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई ऑब्जेक्ट की? 2 plus 1, 2 plus 1 3. डिस्टेंस हो गई ऑब्जेक्ट की 3. डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट मीन्स द टोटल शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट की क्या होगी? 2 plus 1 equals to 3, क्योंकि उसकी पोजीशन में जो टोटल चेंज है A to C क्या है? वो 2 plus 1 3. बट यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है, बट अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन के चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? AC. क्यों? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को हम जो टोटल एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पाथ ऑफ मूविंग बॉडी, दैट इज डिस्टेंस, एंड देयरफॉर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नंबर है. मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर. सो
Distance is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Is because having only magnitude. जबकि displacement एक vector quantity है. Why it is vector quantity? Because it is magnitude and as well as directional. Magnitude के साथ साथ इसमें direction भी matter करता है. So that is the difference between distance and displacement. इसके बाद हम अब देखेंगे speed and velocity. Now our next topic is next physical quantity is speed and velocity. For the study of motion, motion की study के लिए हमें speed, velocity और उसके साथ साथ acceleration इन terms को read करना बहुत जरूरी है. Firstly, we are going to read about types of motion. Types of motion means uniform motion and non-uniform motion. So students, our next topic is uniform motion and non-uniform motion. But before explaining the uniform motion and non-uniform motion, we are going to read about two more physical quantities, that is speed and velocity. Now let's see what is speed and velocity. Speed, velocity. What is speed? It is distance. It is the distance traveled by moving object per unit time. Per unit time. That is speed. So the formula of speed is speed equals to distance upon time. That is the formula for speed. Speed equals to distance upon time and the SI unit. SI unit. Students, what do you mean by SI units? स्टूडेंट्स, हम SI यूनिट्स के बारे में हमने हर चैप्टर में रीड किया है, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को रीड किया है. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस टर्म को यूज किया जाता है उसे यूनिट कहते हैं. जैसे सपोज दैट लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड, हावर, मिनट्स में मेजर करते हैं. तो ये सब क्या है? यूनिट्स हैं. उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट्स होती हैं. तो ऐसा यूनिट मीन्स स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट मीन्स वो यूनिट हम वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज में फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट्स यूज की जाती हैं. इस तरह से कहीं पे किलोग्राम, कहीं पे ग्राम, कहीं पे पाउंड, इस तरह से यूज की जाती है. ये चीजें किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए ऐसा यूनिट को यूज किया गया, ऐसा यूनिट को रिकमेंड किया गया ताकि वर्ल्ड में एक कॉमन यूनिट को यूज किया जा सके जो कि पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो. ऐसा यूनिट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर जिसे यूज किया जाए और जो पूरे वर्ल्ड में कॉमन हो. इन यूनिट्स को हम कहते हैं SI यूनिट. सो स्पीड की SI यूनिट क्या है? नाउ लेट्स सी व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर. टाइम की SI यूनिट है सेकेंड. सो SI यूनिट ऑफ स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसे इस तरह से राइट कर सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स 1. दैट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड. अब हम बात करते हैं स्पीड. एज वी नो दैट स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है. बट व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर? ये किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? नाउ लेट्स सी. Distance, we read about distance. Distance is a scalar physical quantity. And time भी एक scalar physical quantity है. So scalar physical quantity दोनों ही scalar है. Therefore speed कैसी quantity हो गई? Scalar. Speed है scalar physical quantity. Now let's see velocity. Velocity क्या है? It is the distance
traveled by moving object per unit time in a given direction. In a given direction. That is velocity. Let's see what is the difference between speed and velocity. Speed क्या है? It is the distance traveled by object per unit time. But velocity क्या है? Distance traveled by object per unit time, but in a given direction. It means it is a directional. So the formula of velocity का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और स्पीड के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. स्पीड को भी हम v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम s से ही डिनोट करते हैं एंड टाइम को हम t से डिनोट करते हैं. दैट इज t एंड द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी की भी SI यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. बट वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. कैसे है वेक्टर? नाउ लेट्स सी डिस्प्लेसमेंट. वी रीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट कैसी फिजिकल क्वांटिटी थी? वेक्टर. टाइम इज स्केलर. एज वी नो दैट जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से ऑपरेट करते हैं, रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही आता है. देयरफॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. स्पीड क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आई होप क्लियर है बेटा डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. नाउ लेट्स सी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड. अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है. नाउ लेट्स सी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड मीन्स सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट A टू B, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसे ले लिया हमने S1. B टू C जो डिस्टेंस कवर किया है वो हो गया S2 एंड C टू D जो डिस्टेंस कवर है वो है S3 एंड टाइमिंग इज T1, T2, T3. कोई ऑब्जेक्ट है A टू B पॉइंट तक, उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज सपोज दैट S1. B टू C जो डिस्टेंस कवर किया सपोज दैट डिस्टेंस इज S2. जो भी वैल्यू हो उसकी डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? S से. एंड C टू D जो डिस्टेंस कवर किया वो है S3. A टू B तक का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज लेट द टाइम इज T1. B टू C डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज T2. C टू D डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज T3. So average speed means total distance traveled S1 plus S2 plus S3 upon total time taken. That is average speed. Average speed means total distance traveled upon total time taken, that is called average speed. Now let's see what is average velocity. Average velocity means average velocity.
Average velocity means the mean of initial and final velocity for a given period of time. That is called average velocity. Initial and final velocity. Initial velocity जिसे हम u से डिनोट करते हैं and final velocity जिसे हम v से डिनोट करते हैं. So that is average speed and average velocity. Now let's see uniform motion and non-uniform motion. Motion two type होते हैं, uniform motion and non-uniform motion. Non-uniform motion. ठीक है. What is uniform motion? Uniform motion means when an object covered equal distance in equal interval of time. कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है. ठीक है. एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन when an object covered unequal distance in equal interval of time, that is called non-uniform motion. All over speed, non-uniform motion में speed कैसी होगी? Non-constant. Speed constant नहीं होगी. That is non-uniform motion. Now let's see one example. Suppose that an object A to B 7 o'clock to 8 o'clock. कोई ऑब्जेक्ट है 7 o'clock to 8 o'clock के बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. देन 8 o'clock to 9 o'clock के बीच में अगेन 4 किलोमीटर. देन 9 o'clock to 10 o'clock के बीच में अगेन 4 किलोमीटर. सो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ टाइम? इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल 1 आवर 7 to 8 के बीच में 1 आवर का इंटरवल है. 8 to 9 अगेन 1 आवर. 9 to 10 अगेन 1 आवर. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कितनी है? 7 to 8 के बीच में 4 किलोमीटर. देन 8 to 9 के बीच में अगेन 4 किलोमीटर. देन 9 to 10 के बीच में अगेन 4 किलोमीटर. मीन्स equal distance covered by the object in equal interval of time, that is called uniform motion. All over speed कैसी है यहाँ? Constant. बट जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें 7 o'clock to 8 o'clock के बीच में 4 किलोमीटर कवर कर रही है. देन 8 o'clock to 9 o'clock के बीच में 5 किलोमीटर कवर कर रही है. देन 9 o'clock to 10 o'clock के बीच में 7 किलोमीटर कवर कर रही है. सो इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल 1 आवर 1 आवर, बट डिस्टेंस इज अनइक्वल. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट distance traveled by the object is unequal in equal interval of time. टाइम का इंटरवल इक्वल है 1 आवर 1 आवर 1 आवर, बट डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल नहीं है. दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स वो एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी. सो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है. दैट इज यूनिफॉर्म मोशन ऑल ओवर. स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं. व्हाई? क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है. ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है. ऑल ओवर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अनइक्वल होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
that is non-uniform motion. So आज जो हमने टॉपिक्स रीड किए, मोशन, व्हाट इज मोशन, देन व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एंड आफ्टर दैट speed and velocity, difference between speed and velocity, and their SI units, and average velocity, what do you mean by average speed, and types of motion, uniform motion and non-uniform motion, give the difference between uniform motion and non-uniform motion. So beta, you have to revise these topics. जो topics आज हमने read किए हैं, you have to revise them and watch the video and understand the topic.